हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स प्राइड। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, दैट इज कंप्यूटर साइंस क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आए हैं, वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज the maximal element of the POS set. First of all, what is POS set? Partially ordered set. Okay, so partially ordered set नाम में छिपा है, हम यहाँ पे ordering कर रहे हैं। Now the POS set can be represent using the Hazer diagram. So Hazer diagram में nodes होंगे and edges होंगी। नोड रिप्रेजेंट करेंगे POS set के एलिमेंट को and edges रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशन बिटवीन द two node. Okay, so suppose 2 4 5 10 12 20 and 25, that is the element. Okay, 4 can be divided by 2, so that's the relation. So there must be an edge between 2 and 4. 5 can divide by 2 or 4, no, so there is no edge from 5 to 2 or 4. Okay, so like this is our first node 2, this is our second node 4. A 4 can be divided by 2, so we make here the edge. Next one is the 5. 5 element is not divided by 4 or 2, so we can write here like this. Next one is 10. 10 is divided by 2 and 5 both, so we draw edges here. Next is 12. Divided by 4 2, so we can write here. Next one is a 20. 20 is divided by 10 and 4. Okay, so that's the Hazer diagram. Next one is a 25. So we can write here 25 like this, and 25 is divided by 5 only. Okay, so you don't write here the arrow. Okay, so just the relation, इस relation को देख के हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ relation जाना है। अब what is maximal and what is minimal? Maximal element वो element होगा जिससे further कोई relation ना derive हो। Okay, and minimal element वो होगा जिससे नीचे नहीं आ सकते। ऊपर तो एक रिलेशन बन रही है बट नीचे नहीं बन रहे। सो व्हाट आर मैक्सिमल एलिमेंट हियर? 12 20 एंड 25, सो दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। सो व्हाट्स द मिनिमल एलिमेंट हियर? 2 and 5 is the minimal element here. So next है the subset relation defined on a power set, that is partial order relation. That is the definition of the partial order relation. The subset of a power set, that is partial order relation. Next one is the consider the group. Here we have to given the group 1 minus 1 iota and minus iota. Iota and minus iota is a complex number and we have to find the multiplicative inverse. Okay, so this is the sign of multiply, so हमें inverse निकालना है। So inverse कैसे find out करोगे? अगर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई एलिमेंट का इनवर्स, अगर आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि वो उसका इनवर्स है। अब यहाँ पे 4 एलिमेंट हमें गिवन है, 1 -1 आइटा एंड माइनस आइटा। ओके, तो हमें पूछा है अंडर मल्टीप्लीकेशन द इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा का इनवर्स क्या होगा? अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो व्हाट शुड बी द आयोटा स्क्वायर? दैट इज इक्वल टू -1। ओके, व्हाट शुड बी द आयोटा क्यूब? दैट इज आयोटा स्क्वायर। ओके, तो देयर इज नो नीड हियर। सो आयोटा इज लाइक दिस एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, सो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना माइनस आयोटा का इनवर्स, सो दैट इज माइनस आयोटा। सो आइडेंटिटी क्या होगी? जब हम उसको 1 बना देंगे। ओके, सो अगर हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस आयोटा स्क्वायर। सो व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? दैट इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई -1, so that represent the 1, that is the identity element that we find here
So what should be the inverse of minus iota? That should be the iota is the correct answer here. So next question is the range of integers that can be represented by the 32-bit computer using 2's complement to represent integer. So first of all हमें यहाँ पे 2's complement के लिए पूछा है. ओके, तो यहाँ पे हम अगर एक एग्जांपल ले 5 और 7 को ऐड करने का. ओके, दिस इज 5 and this is 7. This is 3 bit. Okay, so when we add 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 and 1, तो that is जो 12. आया वो हमारा 4 बिट में आया, मीन्स हमारा एक बिट बढ़कर आ रहा है. ओके, तो इस केस में हमारी जो रेंज होगी वो ये होगी -2⁻31. तो इसका एक फॉर्मूला होगा -2⁻n-1 to 2⁻n-1 that is the formula to calculate the range of an integer. ओके, सो अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि जो 2's कॉम्प्लीमेंट है वो फाइंड करते हैं हम साइन बिट भी रिप्रेजेंट करते हैं, साइन बिट के केस में भी और अनसाइन के केस में भी. ओके, सो एक बिट हमेशा हम एक्स्ट्रा मान के चलते हैं. जैसे यहाँ पे एक बिट एक्स्ट्रा आ गई तो इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप 0 को 1 करोगे. ओके, एंड देन आप एक ऐड कर दोगे. ओके, तो इस केस में आप करोगे 2 की पावर जितने बिट का कंप्यूटर है -1, तो एक -1 और होगा, क्योंकि जो नेगेटिव 0 कभी भी नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव में काउंट होगी 0 को, इसीलिए हमने यहाँ पे एक माइनस किया. ओके, so according to that formula the answer is this. Now the next question is from the tree. A full binary tree with n leaf node has in all dash node. Next question is a full complete binary tree के बारे में पूछा है. Okay, so what is the difference between full binary tree and the complete binary tree? Full binary tree को हम 2T भी बोलते हैं. 2T का मीन्स क्या है, एक आपके पास नोड है. ओके, दैट इज नोन एज द रूट नोड. तो यहाँ के 2 चाइल्ड होंगे. नेक्स्ट, हर रूट नोड के 2 चाइल्ड होंगे. ओके, यहाँ पे 2 से कम या 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, तभी इसको बोला है फुल बाइनरी ट्री. सपोज यहाँ पे हमने एक ट्री ड्रॉ किया. ओके, तो क्या ये फुल बाइनरी ट्री है या फिर कंप्लीट बाइनरी ट्री है? फुल बाइनरी ट्री की क्या कंडीशन होता है, एवरी नोड मस्ट हैव द चाइल्ड इज इक्वल टू 2. हर नोड के 2 चाइल्ड होने कंपल्सरी है. लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होगा, इंटरनल जो नोड होंगे उनके 2 चाइल्ड होने कंपल्सरी है, लेकिन जो एक्सटर्नल नोड होंगे उनके या तो 2 चाइल्ड होंगे या फिर चाइल्ड नहीं होंगे, 0 चाइल्ड होंगे. Okay, so this is now a complete binary tree, not a full tree. First of all, so how to make the full tree if this node also have 2 child? Okay, अब हमें जो next हो जाए full complete tree, binary tree. So this is full complete binary tree. So ये difference होगा कि last mode में child node 0 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं in case of complete binary tree, but in case of full binary tree every node must have 2 child. Okay, so यहाँ क्वेश्चन क्या है, एक फुल बाइनरी ट्री विद n लीफ नोड. यहाँ पे n लीफ नोड है इनके, हैज इन ऑल डैश नोड. तो कितने नोड होंगे, सपोज फर्स्ट यहाँ पे जो होंगे नोड दैट इज 2⁻01. यहाँ पे होंगे द फर्स्ट लेवल 2⁻1 दैट इज इक्वल टू 2. यहाँ पे होंगे 2⁻2 दैट इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन. इस तरीके से चलेगा. अब यहाँ पे पूछा है ऑल नोड, कितने नोड होंगे टोटल. तो टोटल नोड होंगे, रूट एक ही पेरेंट है. ओके, उसके 2 चाइल्ड है, अगेन 2 चाइल्ड है. सो 2n तो टोटल होंगे माइनस दिस वन. ओके, सो 2n - 1 इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट है, इन ए फुल कंप्लीट बाइनरी ट्री द वर्टिसेस अदर देन रूट हैव डिग्री. कितने की डिग्री होगी, डिग्री होगी कितने आउटकम यहाँ से निकल रहे हैं. तो डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए 2. ओके,
Now the next question is 52. If for a continuous function fx, fa fb less than 0, then fx has dash in ab. Option है may or may not have root, no root, odd number of root and even number of roots. तो roots क्या होते हैं इनकी बात करेंगे. तो पहले हम देख लेते हैं हमें जो कंडीशन दी है fa एंड fb, ओके, कि वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए. लेस देन 0 होने के लिए f a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो एफ बी की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए. ओके, तभी जो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लेस देन 0. और कंडीशन क्या हो सकती है, एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ ए इज लेस देन 0. ओके, तो दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी ना. अगर इसके n डिग्री होंगे तो उसके n रूट होंगे. कैसे, तो रूट क्या है यहाँ पे सपोज ये a लिया हमने. ओके, सो a टू b इस तरीके से. सो दिस इज पॉइंट a एंड दिस इज पॉइंट b. सो इस a टू b में मूव करने के लिए जहां पे x एक्सिस को आप क्रॉस करोगे, मीन्स जहां पे x की वैल्यूज और y की वैल्यू 0 हो जाएंगी, वो कहलाएगी आपके पास रूट. ओके, अगर यहाँ पे n डिग्री है तो उसके n नंबर ऑफ रूट्स होंगे. ओके, तो यहाँ पे आपके पास इवन नंबर ऑफ रूट्स आएंगे क्योंकि हमारे पास जो डिग्री यहाँ पे गिवन है वो 2 डिग्री दी है, a और b. यहाँ पे इवन नंबर ऑफ रूट्स जो होगा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा. ओके, क्योंकि अब a टू b एक जो है वो नीचे है, एक चीज माइनस में होगी तो दूसरी प्लस में होगी, तो फॉर श्योर आपको एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पे आपको एक्स एक्सिस को क्रॉस करना पड़ेगा. वो क्रॉसिंग पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका रूट. ओके, तो कितनी बार क्रॉस करना पड़ेगा वो कहलाएगा नंबर ऑफ रूट्स. तो एटलीस्ट 1 बार तो आपको a टू b जाना ही पड़ेगा. ओके, और आप जितनी बार जाओगे n नंबर ऑफ टाइम्स वो हमेशा क्या आएंगे, इवन नंबर्स ही आएंगे. ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इवन नंबर ऑफ रूट इज द करेक्ट आंसर हियर बिकॉज इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. आप यहाँ पे डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते. जैसे ये a है और ये b है. ओके, यहाँ पे क्या हुआ, एक भी रूट नहीं आया क्योंकि एक फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूड है. तो हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन गिवन है, तो यहाँ पे जो रूट्स होंगी वो डैम श्योर होंगी. ओके, तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि नो रूट्स. नो रूट्स वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि आप नेगेटिव से पॉजिटिव में मूव करोगे. ओके, मे और मे नॉट नहीं, डेफिनेटली आपके पास रूट होंगी. ओके, सो कितनी होगी, नॉट odd number of roots but it is even number of roots because we have 2 degree. Okay, so n number of degree has n number of roots. Okay, so correct answer is even number of roots. Now next question is palindrome cannot be recognized by FSM finite state machine, PDA push down automata, post machine and the Turing machine. First of all, what is palindrome? Palindrome is a string which has same string from the mid to the left as well as the right. Okay, अगर आप 1 के इधर देखो 2 3 और 1 के यहाँ देखोगे वो भी 2 3, दैट इज नोन एज द पैलिंड्रोम. तो पैलिंड्रोम को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिड फाइंड आउट करेगा. ओके, तभी तो आप स्ट्रिंग की मैचिंग करोगे. ओके, सो मिड फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ द फाइनाइट स्टेट machine. Okay, and the second reason, finite state machine has very less amount of memory, or we can say that no memory. Okay, so if there is no memory, if you go here 2 3 3 2 and 1. Okay, so first of all there is no criteria to find out the mid and how to store these 2 string and then match these string. Okay, so finite state machine is the correct answer here. Push down automata has memory, so for the PDA it is possible to recognize palindrome. Post machine and the Turing machine as well have the memory to find out the or recognize the palindrome. Now the next question is a function that call itself for its processing is known as the recursive function. Recursive means ये होता है call itself again and again for processing whenever
there is a loop or anything else. Okay, so inline function is that function in which you have just 2 or 3 line code. Okay, so you write the code where you will use it. Okay, so there is no overhead to call again and again for online function, because the function is very small. The overhead of calling is may be more, so that's why we write inline function. Next is nested function. Function inside the function, function inside the function is known as the nested function. Next one is the overloaded function. The function having same name but different functionality is known as the function overloading. So recursive relation is the correct answer here. Now the question number 55. In a time sharing operating system, when the time slot given to a process is complete, the process goes from running state to dash state, that is रेडी स्टेट में आपके पास चली जाएगी, क्योंकि अभी उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं है, बट उसका टाइम स्लॉट जो है वो कंप्लीट हो गया. सो नेक्स्ट वो वेट करेगी इन द रेडी स्टेट में कि कब उसकी टर्न आएगी और उसको वो टाइम स्लॉट मिलेगा, और ये प्रोसेस अगेन रेडी क्यू टू एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन टू रेडी क्यू चलता रहेगा जब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती. तो लेट्स, यहाँ पे हमारे पास दो प्रोसेस है P1 एंड P2. ओके, यहाँ पे हमने जो टाइम स्लॉट लिए वो 1-1 का लिया और दोनों का एंट्री पॉइंट 0 पे है. ओके, तो पहले जो आई वो प्रोसेस P1 आई, सपोज इसको टाइम चाहिए 2 और इसको टाइम चाहिए 3. ओके, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल P1 आई, और P1 कब चलेगी? 0 से 1, 1 के लिए चलेगी, क्योंकि हमने टाइम स्लॉट 1 के लिए दिए. अब जो है ये किसमें चली जाएगी? P1 रेडी स्टेट में. सो नेक्स्ट जो आएगी वो आएगी P2, और P2 किसने टाइम के लिए आएगी? अगेन 1 टाइम के लिए. ओके, अब P2 की जो टाइम स्लॉट ओवर हो गया, बट इसका एग्जीक्यूशन के लिए इसको 2 मिनट और चाहिए. ओके, सो अब P2 जो है रेडी स्टेट में जाएगी, P1 आएगी एग्जीक्यूशन पे. अब P1 एग्जीक्यूशन में आई 2 to 3 के लिए. अब यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, अब ये टर्मिनेट हो जाएगी. ओके, अब जो बाकी बचे हुए हैं 3 to 4 और 4 to 5, वो P2 अपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी और यहाँ से एग्जिट हो जाएगी. सो दैट इज नोन एज द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट विल मूव रेडी क्यू टू द रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट. ओके, दिस इज द रनिंग स्टेट इन द रेडी क्यू और रेडी स्टेट, वी कैन से दैट. नेक्स्ट है ए डेटा डिक्शनरी इज ए स्पेशल फाइल दैट कंटेन. डिक्शनरी है तो हर चीज वो अपने अंदर कंटेन करेगी. नेम ऑफ ऑल फील्ड इन ए फाइल, बिल्कुल कंटेन करेगी. नेक्स्ट है डेटा टाइप ऑफ ऑल फील्ड इन ऑल फाइल्स. ओके, क्या डेटा है उसका? इंटीजर टाइप है, वैरचर है, कैर है, काइंड ऑफ दिस. नेक्स्ट है विड्थ ऑफ ऑल फील्ड इन ऑल फाइल्स. अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप उसको फील्ड विड्थ अलॉट होगी. ओके, दैट ऑल्सो कंटेन इन द डेटा डिक्शनरी. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? ऑल ऑफ अबव is contained in the data dictionary file. Next है encryption and decryption is the responsibility of the presentation layer. Presentation layer is also known as the ट्रांसफॉर्म लेयर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है एनक्रिप्ट करके एंड देन डिक्रिप्ट करके. सो दिस इज अ सेंडर. ओके, सेंडर में आपने कुछ मेल लिखी या कुछ भी आपने दिया, दैट इज द एप्लीकेशन, या कोई एप्लीकेशन में आप काम करा. अब वो डेटा को आपको इंटरनेट के थ्रू किसी और कंप्यूटर पे सेंड करना है. ओके, तो वो डेटा एज इट इज नहीं जाएगा, वो डेटा जाएगा एनक्रिप्शन की फॉर्म में. ओके, सो नेक्स्ट लेयर जो होगी एप्लीकेशन, तो वो जो आपने मैसेज सेंड किया, सो इमीडिएट नेक्स्ट लेयर दैट इज नोन एज द प्रेजेंटेशन लेयर पे डेटा आपका इनक्रिप्ट हो जाएगा. अब इनक्रिप्टेड डेटा प्रोसेस होगा थ्रू द lower layer of the OSI model. Okay, then it goes to the session layer, transport layer, network layer, data link layer, and then physical layer. Okay, and these processes will go the same here. Okay, ये जब हमने OSI मॉडल पढ़ा था उसमें डिटेल में बताया हुआ कैसे डेटा ट्रांसफर हो रहा है. अब इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन की टॉप लेयर से जस्ट नीचे वाली लेयर, दैट इज द प्रेजेंटेशन लेयर की. नेक्स्ट है then data structure is used in the recursion. Recursion is an application of the stack. Okay, अब stack जब पढ़ाया था तो एप्लीकेशन में बताया गया था
कि रिकर्शन के टाइम पे आप स्टैक को यूज करते हो। रिकर्शन मीन्स क्या है? कॉल अगेन एंड अगेन। अगर आपको कॉल करना है तो उसको कहीं ना कहीं पे आपको स्टोर करना पड़ेगा, तभी आप उसको कॉल करोगे। तो वो किस में करोगे? दैट इज स्टैक। स्टैक क्या होता है आपके पास? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। ओके, जैसा अभी हमने केस किया था पैलिंड्रोम का 3 2। जैसे ही मिड पॉइंट आएगा 3 2 1 2 3, पहले आपने 3 को स्टोर कराया, फिर 2 को स्टोर कराया। जैसे ही 1 आएगा आप इसमें से क्या कराओगे? पॉप कराओगे 2, और फिर यहाँ पे मैचिंग होगी। नेक्स्ट पॉप कराओगे 3। पुश एंड पॉप इसके ऑपरेशंस होते हैं स्टैक के। ओके, क्यू ग्राफ एंट्री नो दिस इज ए डेटा स्ट्रक्चर बट नॉट यूज्ड इन द रिकर्शन। क्यू क्या होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ टपल इन ए रिलेशन इज कॉल्ड इट्स कार्डिनैलिटी। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट होता है। अगर क्वेश्चन okay, and number of attribute in a relation is called degree, and domain is known as the set of Domain. permitted value of the attribute. In option you have given okay, degree, question, not domain. Okay. Next question है, in a relation is in dash normal form if every field contain only atomic value that is not list or set. Suppose यहाँ पे आपके पास number of rows है और number of column, that is number of row 1 2 और that is column 1 2 and 3. The intersection point पे हमेशा atomic value आने चाहिए, that's the first normal form. यहाँ पे आप लिस्ट नहीं दे सकते, यहाँ पे आप सेट नहीं दे सकते, जो कि इसने डायरेक्टली बोल दिया। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो हमने यहाँ तक 15 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वो कवर कर लिए हैं। अगर आपको कंप्लीट समझ आया, हिट द लाइक बटन, प्लीज शेयर द वीडियो मोर एंड मोर, ताकि हम जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्स करने वाले हैं HSSC PGT स्क्रीनिंग के लिए वो स्टार्ट कर पाए। ओके, अगर रिस्पॉन्स ऐसा ही मिला तो शायद नहीं हो पाएगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो डेफिनेटली वी विल स्टार्ट आवर